about Karnataka. In Karnataka, BJP is preparing to replace many incumbent BJP MPs and also possibly field Lingayat leaders. Let's take a look at what the strategy is for Karnataka. What is the formula for Karnataka? This is NDA's 2024 blueprint that we've accessed for you. As far as Karnataka is concerned, discussion to take place and we are given to understand that many incumbent BJP MPs are likely to be replaced. तो जो करंट सांसद हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, नए चेहरे हो सकते हैं मैदान में, नए लोगों को मौका दिया जा सकता है. लिंगायत नेता कुड बी फील्डेड. तो लिंगायत कम्युनिटी को रिझाने की भी एक बहुत बड़ी कोशिश है. बहुत बड़ा समुदाय लिंगायत कम्युनिटी का कर्नाटक में आता है और उसे रिझाने के लिए लिंगायत लीडर्स को ही मैदान में उतारने की तैयारी ऐसा पहले भी बीजेपी कर चुकी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नजर इस कम्युनिटी पर रहती है. एलआई जेडीएस लाइकली टू गेट कोलार, मंड्या एंड हसन. लग रहा है कि इन सीटों पर बातचीत जेडीएस और बीजेपी के बीच हो चुकी है और कोलार, मंड्या और हसन जो है वो जेडीएस के पाले में जा सकता है. जेडीएस आइंग चामराजनगर करंटली दैट इज हेल्ड बाय द बीजेपी. जेडीएस को चाहिए चामराजनगर सीट जिस पर कि फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी का कैंडिडेट है जो कि पिछले चुनाव में चुनाव जीता था. दीपक गेटिंग अस मोर डिटेल्स ऑन दैट. दीपक, ऑफ कोर्स यू नो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज will eye the Lingayat community. As far as BJP's formula is concerned, we're given to understand many sitting MPs could lose their tickets and Lingayat leaders like Jagdish Shettar and Basavaraj Bommai could be fielded. Yes, we should also note that, in the last few days, there have been multiple meetings that have been held in Delhi. This is, of course, the BJP core committee that has met. More importantly, the JDS has also met some of the top leaders of the BJP where they've held discussions about seat sharing. As far as the BJP is concerned, sources tell us at least 40% of the old MPs may not probably be given a ticket once again. Now we should note that Jagdish Shettar made his comeback to the BJP very recently. In all probability, he is going to be contesting this particular election. Apart from that, Mr. Basavaraj Bommai as well. There have been talks that he's been hoping to, contest from Haveri. And interestingly here for the JDS at this point in time, the demand from them is that they want to contest about 5 seats, but as of now, the BJP continues to say that probably 3 of, to push it, probably 4th seat would be the only possibility for them. Monday, of course, remains a big pole of contention for the NDA. There are 28 Lok Sabha seats in Karnataka. Discussion to likely take place on all the seats, and we've decoded Bharatiya Janata Party's NDA's formula as far as Karnataka is concerned. Thank you, Deepak, for getting us the details. Moving on now, अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की तैयारी है एनडीए की. 2024 ब्लूप्रिंट एनडीए का हम आपको बता रहे हैं, एक एक राज्य में क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी अपना रही है. और ये जो अंदर की खबर है ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां जानकारी मिल रही है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है. अनुराग ठाकुर लाइकली टू बी फील्डेड फ्रॉम हमीरपुर. अनुराग ठाकुर के अलावा या हमीरपुर की सीट के अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कांगड़ा, मंडी एंड शिमला सीट्स टू बी डिस्कस्ड एज वेल. हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला इन सीटों पर चर्चा होगी. लेकिन अभी फिलहाल जो एक चेहरा सामने आ रहा है वो अनुराग ठाकुर का कि अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से मैदान में उतारा जाएगा. We have Poonam joining us with more details. Poonam, tell us about the significance of these seats and news coming in that Anurag Thakur could be fielded from Hamirpur. Yeah, according to sources, what information we are getting is that from Himachal Pradesh, the party is preparing to field Anurag Thakur from Hamirpur. And it is set to discuss for other seats like Kangra, Mandi and Shimla. It will be decided in CEC meeting that who will be the candidate from these 3 like Hamirpur, Mandi and Kangra. All right, Poonam, thank you very much for getting us the details on Himachal Pradesh. Let's move on now and shift our focus to the state of Haryana, जहां पर 10 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी 10 सीटों पर चर्चा होने वाली है. 4 सिटिंग एमपीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रिप्लेस्ड. ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा से जुड़ी हुई, जहां पर 4 जो सिटिंग एमपीज हैं, जो करंट सांसद हैं, उनको रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा इस बार. डिस्कशन टू टेक प्लेस ऑन ऑल द 10 लोकसभा सीट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट हरियाणा and around 4 incumbent MPs could be replaced. इनकी जगह औरों को मौका दिया जाएगा, ये खबर आ रही है. Talks on over fielding रणदीप हुड्डा in रोहतक. एक्टर रणदीप हुड्डा को हो सकता है कि रोहतक से मैदान में उतारा जाए, ये बड़ी खबर आ रही है. रणदीप हुड्डा रिलक्टेंट टू जॉइन पॉलिटिक्स फॉर नाउ. अभी उनकी तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, फिलहाल हिचकिचा रहे हैं. ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि रणदीप हुड्डा फिलहाल हिचकिचा रहे हैं पॉलिटिक्स में डेब्यू करने से. लेकिन अगर इसकी पुष्टि होती है तो फिर पूरी तैयारी है कि रणदीप हुड्डा को रोहतक से उतारा जाएगा. लेट्स टेक अ लुक एट लिस्ट ऑफ प्रोबेबल्स. सोर्सेज टेलिंग टाइम्स नाउ दैट दीज आर इंडिविजुअल्स हु आर
could be part of the list. इनके नाम का ऐलान हो सकता है. गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, अपार्ट फ्रॉम हिम फरीदाबाद से किशन पाल गुर्जर. तो ये प्रोबेबल्स हैं, इनको इन सीटों से उतारा जा सकता है मैदान में. दैट्स व्हाट वी गिवन टू अंडरस्टैंड. कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल हरियाणा में, ये खबर आ रही है कि प्रोबेबल्स हैं ये, जिनके नाम मौजूद हैं लिस्ट में. लेट्स टेक अ लुक एट अदर सीट. सिरसा अशोक तंवर, सिरसा से सुनीता दुग्गल. दीज आर इनसाइड डिटेल्स दैट वी आर गेटिंग फॉर यू. बीजेपीज प्रोबेबल्स फॉर हरियाणा. तो ये सिरसा से 2 प्रोबेबल्स हैं, इनमें से किसी एक के नाम का चयन मीटिंग में हो सकता है. सभी 10 सीटों पर चर्चा होने वाली है हरियाणा को लेकर. लेट्स नाउ मूव ऑन एंड शिफ्ट आवर फोकस टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में आपने देखा कि अमित शाह वहां गए थे. मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दोनों से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी और ऑलमोस्ट डील जो है वो डन मानी जा रही थी. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. बीजेपी लाइकली टू कंटेस्ट इन 32 कंस्टिट्यूएंसीज. कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में. एक बहुत बड़ा चंक है सीटों का जो महाराष्ट्र से आता है. एनडीए सेट्स टारगेट ऑफ विनिंग मिनिमम 45 सीट्स. तो 48 में से एनडीए का टारगेट है कि कम से कम उन्हें और उनके सहयोगियों को 45 सीटों पर जीत हासिल हो. पीयूष गोयल लाइकली टू कंटेस्ट फ्रॉम मुंबई. पीयूष गोयल का नाम सामने आ रहा था अलग अलग रिपोर्ट्स में कि हो सकता है उन्हें मुंबई से मैदान में उतारा जाए. मोर और लेस बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा, कॉन्फर्मेशन भी हो जाएगा. तो